नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग मया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। गाथा 70 आ प्रवचन सार नामनु परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव सदुपयोग ने शुभउपयोग ए बन्नेना फळનું વર્ણન કરવા માંગે છે। સદુપયોગનું ફળ ક્ષાયિક જ્ઞાન ક્ષાયિક સુખ એમનું વર્ણન જ્ઞાન અને સુખ અધિકારમાં કર્યું। હવે શુભ પરિણામ અધિકારમાં શુભ ઉપયોગનું ફળ ગાથા 70 એનું એડિંગ છે કે હવે ઇન્દ્રિય સુખને કયું સુખ? ઇન્દ્રિય સુખ। ઇન્દ્રિય સુખ ખરેખર અધ્યાત્મ અપેક્ષા એ દુઃખ છે। અધ્યાત્મ અપેક્ષા એ ઇન્દ્રિય સુખ છે તે દુઃખ છે। તો કે છે ઇન્દ્રિય સુખને શુભ ઉપયોગના સાધ્ય તરીકે એનો અર્થ કરવા પંડિતજીએ બ્રેકેટમાં લખ્યું છે શુભ ઉપયોગ સાધન છે અને તેનું સાધ્ય એટલે કે એનું ફળ ઇન્દ્રિય સુખ છે। શુભ ઉપયોગને સાધન કીધું, ઇન્દ્રિય સુખને સાધ્ય કીધું। શુભ ઉપયોગને સાધન કીધું, ઇન્દ્રિય સુખને સાધ્ય કીધું। અન્વયાર્થ શુભ ઉપયોગ યુક્ત આત્મા તિર્યંચ મનુષ્ય અથવા દેવ થઈને તેટલો કાળ
વિવિધ ઇન્દ્રિય સુખ પામે છે. શું કહ્યું? શુભ ઉપયોગ યુક્ત આત્મા જેના પરિણામમાં શુભ પરિણામની મુખ્યતા છે એવો આત્મા તિર્યંચ મનુષ્ય અથવા દેવ થઈને તેટલો કાળ એટલે તિર્યંચમાં જન્મ થયો ત્યાંનું જેટલા કાળ માટે આયુષ બાંધ્યું છે તેટલો કાળ. મનુષ્ય થયો તો મનુષ્યનું જેટલું આયુષ બાંધ્યું છે એટલો કાળ, અને દેવ થયો તો દેવ ગતિનો આયુષનો જેટલો કાળ છે તેટલો કાળ વિવિધ ઇન્દ્રિય સુખ પામે છે. શું કહ્યું? જીવ 3 પ્રકારના પરિણામ કરી શકે. અશુભ પરિણામ કરે, શુભ પરિણામ કરે અને શુદ્ધ પરિણામ કરે. અશુભ ભાવને છોડીને શુભ ભાવની મુખ્યતાથી જીવન જીવે તો એ શુભ ભાવનું ફળ છે તો સંસાર. શુભ ભાવનું ફળ છે ગતિ. તિર્યંચ ગતિમાં જન્મ લે, મનુષ્ય ગતિમાં જન્મ લે કે દેવ ગતિમાં જન્મ લે, ત્રણે 3 ગતિ એમાં ઇન્દ્રિય સુખ પ્રાપ્ત કરે. ઇન્દ્રિય સુખ કહેતા બાહ્ય અનુકૂળતા. બાહ્ય અનુકૂળતાને ભોગવે પણ આત્મિક સુખ પ્રગટ કરી શકતો નથી. આત્મિક સુખ એટલે અતિન્દ્રિય સુખ. આત્મિક સુખ એટલે સ્વાભાવિક સુખ. ઇન્દ્રિય સુખ શું છે? તો કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવી શકે એવા બાહ્ય સાધનો મળ્યા. તરવાનો શોખીન હોય, સ્વિમિંગનો શોખીન હોય
તો 2 કલાક 3 કલાક સ્વિમિંગના પુલમાં પડ્યો રહે. ખાવા પીવાનો શોખીન હોય, ભાવતી ચીજ ભોગવે. બહારની સુગંધ પ્રિય હોય તો અનેક પ્રકારના સેન્ટ છાંટે શરીર ઉપર. આંખનો વિષય કુદરતના દ્રશ્યો વહેલી સવારે કે સમી સાંજે જોવા બેસે, એને એમ લાગે કે ઓહો મજા આવી ગઈ. કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય હાસ્ય કલાકારોને સાંભળે, ગમતા ગીતો સાંભળે, સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયો, રસેન્દ્રિયના વિષયો, ઘ્રાણેન્દ્રિયના વિષયો, ચક્ષુઇન્દ્રિયના વિષયો, શ્રોતેન્દ્રિયના વિષયો, એ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો છે પર પદાર્થ. સિદ્ધાંતથી આત્મા પર પદાર્થના પરિણામને કરી શકતો નથી, ભોગવી શકતો નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો એ પરિણામ છે તો અચેતન જળ, એને ભોગવી શકતો નથી. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અજ્ઞાની જ્યારે એમ માને કે મેં ભોગવટો કર્યો, ત્યારે પણ ખરેખર અજ્ઞાની પોતાના અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગદ્વેષને ભોગવે છે. કારણ કે અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગદ્વેષ એ જીવના પરિણામ છે, ચેતનવંતા પરિણામ છે. આત્માના સ્વક્ષેત્રમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, એને આત્મા ભોગવી શકે. પણ એ પરિણામ ખરેખર તો આકુળતાનું કારણ છે. એ પરિણામ ખરેખર દુઃખદાયક છે. પણ ઇન્દ્રિય દુઃખ એની સાપેક્ષાએ ઇન્દ્રિય સુખ સારું છે એવો અભિપ્રાય અજ્ઞાનીનો છે. જ્યાં સુધી અતિન્દ્રિય સુખનો આસ્વાદ લેતો નથી, જ્યાં સુધી અતિન્દ્રિય સુખનો ભોગવટો કરતો નથી, જ્યાં સુધી સ્વના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થતા સુખને ભોગવતો નથી,
જ્યાં સુધી અજ્ઞાની ઇન્દ્રિય દુઃખ કરતા ઇન્દ્રિય સુખ સારું છે એ અભિપ્રાય એમનો છૂટતો નથી. શું કહ્યું? फिर से हिंदी में आचार्य भगवंत शुभ उपयोग ने साधन के छे. इंद्रिय सुख को साध्य कहते हैं. शुभ उपयोग साधन इंद्रिय सुख साध्य. ये मान्यता किसकी है? तो कि जीव 3 प्रकार का परिणाम कर सकता है. अशुभ परिणाम करे, शुभ परिणाम करे और शुद्ध परिणाम करे. अज्ञानी ने कभी भी शुद्ध परिणाम तो किया नहीं, कभी भी शुद्ध परिणाम नहीं किया. इसलिए अज्ञानी शुभ और अशुभ परिणाम के बीच में कंपैरिजन करके इंद्रिय दुख से अच्छा इंद्रिय सुख है, ये मान्यता को छोड़ नहीं सकता है. क्या कहा? इंद्रिय सुख का अर्थ है 5 इंद्रिय के बाह्य विषय. स्पर्शेंद्रिय का विषय हो, रसेंद्रिय का विषय हो, घ्राणेन्द्रिय का विषय हो, श्रोतेंद्रिय का विषय हो. पांचों इंद्रिय का विषय तो रूपी पदार्थ है. पांचों इंद्रिय का विषय पर पदार्थ है. इंद्रिय रूपी को जान सकता है, अरूपी को जान नहीं सकता. इतनी ताकत नहीं है उसकी. पांच इंद्रिय के विषय में किसी को स्विमिंग पूल में 2-2, 3-3 घंटे उसको लगता है मजा आ जाती है. शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, आत्मा में स्फूर्ति नहीं आती. रसेंद्रिय का विषय किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को फरसाण अच्छा लगता है. संडे हॉलीडे है, अच्छी तरह खाना खाया, 3-4 घंटा लौट गया. उसको लगता है हास आराम हो गया, फ्रेश हो गए.
प्रमाद का पोषण किया और उसको सुख माना। सुगंध अच्छी लगती है, अनेक प्रकार के सेंट शरीर पर, वस्त्र पर, चक्षु इंद्री के विषय और स्त्री का रूप देखना वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुदरती दृश्य देखे समुद्र के किनारे पर जाकर उछलता हुआ समुद्र हो, सुबह में सूर्य खिलता हो, तो उसको लगता है उसमें मैं क्या गलती करता हूँ। कुदरती दृश्य है तो मैंने देखा, जाना। समुद्र पर किनारे पर जाकर बैठा, शीतल पवन उसका अनुभव किया, उसमें मैंने बुरा क्या किया। अच्छा संगीत सुना, पांच इंद्री के विषय वहां तेरी दृष्टि और उपयोग रखा, उसमें तो तन्मय हो गया। ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि नहीं गई, उपयोग ने ज्ञायक को विषय नहीं बनाया। दृष्टि और उपयोग ज्ञायक से दृष्टि और उपयोग ज्ञायक से च्युत होकर रूपी पदार्थों को विषय बनाया, तो ज्ञायक दृष्टि में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया। इस स्वभाव के फल में पांच इंद्रिय और उसके विषय अनुकूल मिले, और इतना काल विविध इंद्रिय सुख पाया। स्वभाव का उदय भी पूरे जीवन समान नहीं रहता, क्योंकि किसी प्रकार का उपयोग हो, शुभ के अशुभ, अंत मुहूर्त काल से ज्यादा टिक नहीं सकता। जितना काल अनुकूल संयोग में गया और इंद्रिय सुख पाया,
इंद्रिय सुख को अज्ञानी ने सुख क्यों माना? क्योंकि उसने अतीन्द्रिय सुख का वेदन कभी किया नहीं। इंद्रिय सुख, स्वाभाविक सुख, आत्मिक सुख, सुख आत्मा का स्वभाव है। ऐसा निर्णय, ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान अज्ञानी ने कभी किया नहीं। वो कभी किया नहीं, इसलिए उसने अशुभ के फल के साथ शुभ का फल, उसकी सापेक्षता देकर अशुभ का फल से शुभ का फल ठीक है, अच्छा है, लाभकारी है, इष्ट है, ऐसी अज्ञान दशा में बुद्धि की और इंद्रिय सुख में तन्मय हो गया। श्रीखंड पुरी, अड़वी के पान में से बनता हुआ पात्रा, वो उसका आहार लिया। उसको लगा ओहो, खाने में मजा आ गई। पिज्जा खाया, ठीक लगा। उसमें ऐसा तन्मय हो गया, उसकी दृष्टि और उपयोग पांच इंद्रिय के विषय में ऐसा तन्मय हो गया कि आत्म स्वभाव में दृष्टि और उपयोग रखना चाहिए, वो भान भूल गया। ऐसे जीव जो जो गति में जन्म हुआ, तिर्यंश हो, मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंश गति का काल, मनुष्य गति का काल, देव गति का काल, उसमें जितनी जितनी अनुकूलता मिली उसको सुख मान लिया। इंद्रिय सुख भी सुख गुण का कार्य है, लेकिन विपरीत कार्य है, स्वाभाविक कार्य नहीं है। इंद्रिय सुख में पर का अवलंबन है। इंद्रिय सुख में दृष्टि और उपयोग बाहर रहता है। इंद्रिय सुख में रूपी पदार्थ को विषय बनाकर, रूपी पदार्थ में इष्ट बुद्धि करके उसमें से सुख मिलता है, ऐसी विपरीत मान्यता अज्ञानी करता है। और ऐसा जब तक भ्रम है तब तक इंद्रिय सुख है। देखो टीका, इस आत्मा इंद्रिय सुख का साधन भूत, साधन भूत का अर्थ है कारणभूत,
तो इंद्रिय सुख का कारणभूत शुभ उपयोग, ऊपर साधन साध्य कहा था, उसको आप कारण कार्य भी कह सकते हो। कारण शुभ उपयोग, कार्य इंद्रिय सुख। कारण इंद्रिय सुख, तो शुभ उपयोग और इंद्रिय सुख के बीच में कारण कार्य संबंध है। शुभ उपयोग स्व के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होता, शुद्ध उपयोग स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। शुभ उपयोग स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। शुभ उपयोग परलक्षी भाव है। सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु उसका चिंतन मनन वो भी शुभ उपयोग है। तत्व का चिंतन वो भी शुभ उपयोग है। ज्ञानी का शुभ उपयोग अज्ञानी का शुभ उपयोग के बीच में अंतर है। अज्ञानी का शुभ उपयोग अनंत संसार का कारण है। अज्ञानी का शुभ उपयोग इंद्रिय सुख का कारण है। अज्ञानी सदुपयोग के अज्ञानी शुभ उपयोग के सामर्थ्य से उसका अधिष्ठान भूत यानी आधारभूत क्या कहा, ब्रैकेट में लिखा है उस अर्थ उसका पंडित जी ने, कि इंद्रिय सुख का साधन भूत, इंद्रिय सुख का साधन, साधन यानी आधार। इंद्रिय सुख किसके आधार से उत्पन्न होता है? तो कि इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है पर के आश्रय से। कारण कि इंद्रिय सुख का कारण जो शुभ उपयोग है वो भी पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। शुभ उपयोग का फल में तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति मिलती है। और वो गति में जब तक रहता है तब तक इंद्रिय सुख को मुख्य करके वो पांच इंद्रिय के विषयों को गौण किए बिना पूरा जीवन बिताता है। सुबह से उठकर
रात तक हमारी प्रवृत्ति क्या रहती है? परलक्षी। ब्रश किया, परलक्षी कार्य। ब्रेकफास्ट किया, परलक्षी कार्य। ब्रेकफास्ट अच्छा मिला, सुबह में गर्मा गर्म टेस्ट वाली चाय मिली, उसको लगता है कि आज तो दिन अच्छा जाएगा। अच्छा क्या बुरा क्या, जिसका विवेक नहीं, अज्ञानी अज्ञान दशा में, मिथ्या मान्यता में ओतप्रोत होकर मिथ्या मान्यता में ओतप्रोत होकर इंद्रिय के विषयों में तन्मय होकर मान लेता है कि मुझे उसमें से सुख मिला। ये मिथ्यात्व और अज्ञान के कारण प्रति समय जिसका भाव मरण होता है, फिर भी उसमें सुख मानता है। पुण्य का उदय है, 12 में रिद्धि सिद्धि मिली, स्वरूपान शरीर मिला, बाहर के पुण्य के कारण 5 इंद्रिय के विविध सामग्री पुण्य के कारण मिली, अंदर में फंस गया, वहां से उपयोग घटाता नहीं। तो क्या कहा? देवपना की भूमिका में, देव गति में, लंबा आयुष मिला, सागरोपम का। भूख लगे तो गले में से अमृत गिरता है, 10-10 हजार साल तक भूख न लगे। बाहर में सुंदर अप्सरा मिली, बाहर में भोगोटा का साधन मिला, वो पर पदार्थ के परिणाम का मैं करता हूँ, भोगता हूँ। पर पदार्थ का भोगोटा मैं कर सकता हूँ, ऐसी भूमिका में से बाहर नहीं निकलता। अपना दृष्टि और उपयोग पर पदार्थ में एकाग्र कर दिया। दृष्टि और उपयोग अपने आत्म स्वभाव में एकाग्र करना चाहिए, लेकिन अनादिकाल से किया नहीं। आत्म स्वभाव क्या चीज है वो मालूम नहीं।
अनादि काल से पर का लक्ष्य किया है, वही संस्कार दृढ़ करके आया है। पूज्य गुरुदेव और माता जी जैसे मिले तो माता जी ने कहा, तेरी रुचि पलट दे, उपयोग पलटाने की जरूरत नहीं। रुचि पलटेगी तो उपयोग तो सहज पलट जाएगा। रुचि कहाँ से पलटानी है, उसका अज्ञानी को भान नहीं। पर पदार्थ और पर पदार्थ के विषय हो, उसकी रुचि की, वो रुचि को पलटकर आत्म स्वभाव की रुचि करनी जैसी है, ऐसा अंदर में से भाव नहीं आता। जीव दुखी हो जाता है। देखो गाथा 71। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को इंद्रिय सुख दुख है ऐसा आचार्य भगवान सिद्ध करेंगे। क्या कहा? इंद्रिय सुख दुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। इंद्रिय सुख से भाव मरण होता है। आकुलता का कारण 5 इंद्रिय के विषय, क्या खाना क्या पीना, उसकी भी आकुलता है। शाम को क्या बनाऊं खाने के लिए, डेली एक चीज खाना अच्छा नहीं लगता। नई नई आइटम बनाने की आकुलता, उसके खाने की आकुलता। जो सुख के बाद दुख आए वो सुख नहीं। जो दुख के बाद जो सुख के बाद दुख की उत्पत्ति होती है तो वो सच्चा सुख नहीं। जो चीज अच्छी लगी तो फिर दृष्टि और उपयोग वहां से घुमाकर दूसरे विषय में क्यों दृष्टि और उपयोग को घुमाता है। स्वीट अच्छी लगती है तो स्वीट खाओ, एक पीस खाया दूसरा खाया, फिर फरसाण खाया, क्यों भाई?
स्वीट को क्यों छोड़ दिया? फरसाण खाने के बाद फिर स्वीट खाया, क्यों फरसाण को छोड़ दिया? जिसमें तू सुख की कल्पना करता है उसमें सुख मिलता नहीं, इसलिए तूने विषय बदला। इंद्रिय सुख जिसमें से मिलता है उसका एक लिस्ट बना, फिर वो देख कि जो विषय सुखकारी लगते हैं उसमें कोई सुख नाम का गुण है। उसके पास सुख नाम का गुण है तो क्या वो अतीन्द्रिय सुख रूप परिणमन करके अतीन्द्रिय सुख रूप परिणाम तुझे दे सकते हैं? वो तो होता नहीं। क्या कहा? देखो गाथा 71 उसके शब्द है, सुर नेय सौख्य स्वभाव सिद्ध न सिद्ध छे आगम विषे ते देह वेदन थी पीड़ित रमणीय विषयो मा रमे। अन्वयार्थ, जिन देव के उपदेश में सिद्ध है कि आचार्य भगवान के पास से सुनकर आए हैं, भगवान के पास क्षायिक सुख की बात सुनी थी, क्षायिक ज्ञान की बात सुनी थी, क्षायिक पना की बात सुनी थी, तो क्षायिक ज्ञान का फल तो क्षायिक सुख है। जिनदेव का उपदेश यानी जीवदेव जिनदेव का सिद्धांत में सिद्ध है कि देवों को भी यहाँ देव का अर्थ पर्यंत सिद्ध नहीं होता, यहाँ देव का अर्थ स्वर्ग का देव। देवों को भी स्वभाव निष्पन्न स्वभाव में से प्राप्त होता, स्वभाव को अनुसरण करके प्राप्त होता सुख नहीं। तीन काल तीन लोक को जानने वाले क्षायी ज्ञान को धरने वाले तीर्थंकर परमात्मा ने बताया कि चार गति में सबसे अनुकूल संयोग देव गति में है, फिर भी देवों को अज्ञानी देवों को
अज्ञानी स्वर्ग के देवों को स्वभाव निष्पन्न स्वभाव में से उत्पन्न होता हुआ सुख नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं। सागरोपम का आयुष बांधकर देवगति में गया। इतना शुभ भाव किया, देव में जाकर इंद्र बना। इंद्रो देवों को हुक्म करते हैं, ऐसा इंद्र बना। वो भी, ऐसे देव भी 5 इंद्रियमय देह उसकी वेदना से पीड़ित होता है। वो रम्य विषयों में खेलता है, रम्य विषयों में एकाग्र होता है। रम्य विषय, मनपसंद विषय, जो तेरे मन में जो विषय की भोगोटा की इच्छा है, ये पुण्य के कारण ऐसे विषय भी मिले, फिर भी तू दुखी रहा। टीका, इंद्रिय सुख के भाजनों में उसका अर्थ है भोगोटा में। तो इंद्रिय सुख के भोगोटा में प्रधान यानी मुख्य देव होते हैं। 4 गति की सापेक्षता से देखा जाए तो 5 इंद्रिय के विषयों का वैभव सबसे ज्यादा देवगति में है। उसको भी यानी देवों को भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है। स्वभाव को, आत्म स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होता हुआ सुख नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है। आत्मा में एक सुख स्वभाव है, वो सुख स्वभाव का शुद्ध परिणमन देवों को नहीं हुआ। यथार्थ सुख यानी तेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेश को रोमांचित कर सके, जो सुख पूर्व के अनंत भव में कभी प्रकट नहीं हुआ हो, ऐसा सुख ऐसा आत्मिक सुख अज्ञानी देवों ने पाया नहीं है आज तक। उसको यानी देव को
स्वाभाविक दुख ही दिखने में आता है। देवों को भी 5 इंद्रिय का विषय का भोगवटा एक साथ करना है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों को एक साथ भोगवटा कर सके ऐसा सामर्थ्य तो देव में भी नहीं है। क्यों? कि जीव का उपयोग एक समय एक विषय को विषय बना सकता है, पांच इंद्रिय के विषय का भोगवटा करना है तो एक साथ तो हो नहीं सकता। देव को 5 इंद्रिय वाला देह देह धारण किया है, वो पंचेंद्रिय शरीर रूप पिशाच पिशाच यानी भूत, तो 5 इंद्रिय का भूत भूत क्यों कहा? 5 इंद्रिय और उसके विषय में एकाग्र हो गया है, उस पर भूत सवार हो गया है, उस पर मिथ्या अभिप्राय और अज्ञान उस पर सवार हो गया है। वो मानता है कि 5 इंद्रिय और उसके विषय मेरे लिए सुख का कारण है। ये मान्यता ना दिखी है, अग्रहित मिथ्यात्व पड़ा है। वो तीव्र अग्रहित मिथ्यात्व तीव्र अग्रहित मिथ्यात्व और तीव्र चारित्र मोह, उसमें अज्ञानी वश हो चुका है। ऐसा वश हो गया कि 5 इंद्रिय और उसके विषयों में ही सुख मानता है। ऐसा जीव परवश होकर, परवश का अर्थ है दर्शन मोह चारित्र मोह में जुड़कर दर्शन मोह चारित्र मोह में जुड़कर उसमें जुड़ा हुआ है। भृगु प्रपात समा, भृगु प्रपात उसका अर्थ नीचे दिया है, अति दुख थी कंटाळीने अनादिकाल का दुखी जीव वर्तमान गति में भी ऐसा तीव्र उदय आया और उसमें जुड़ गया। वो तीव्र दुख उससे नाराज होकर आत्मघात करने के लिए पर्वत पर आधार बिना जो ऊंचा स्थान है वहां से नीचे पटकता है।
पर्वत की टोच पर से गिरा, उसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषय में से सुख मिलता है, ऐसा मानकर वो 5 इंद्रिय के विषयों पर टूट पड़ता है, एकाग्र हो जाता है, तन्मय हो जाता है, फिर भी वहां से सुख मिलता नहीं। वहां से दुखी होकर वापिस आता है। लो समय हुआ है। રાજુભાઈ લાસ્ટ લાઈનો મનોગ નો મતલબ શું? મનોગ વિષયો, મનોગ મનની ઈચ્છા મુજબના વિષયોને ગ્રહણ કરવા, મન ઈચ્છિત વિષયને ગ્રહણ કરવા. થેન્ક યુ ભાઈ. કોણ જય બોલાવે છે? કોઈ બોલાવતું ન હોય તો હું બોલાવી લઉં રાજુભાઈ. હા હા. हम भक्तों ना तारणहार श्री कहान गुरुदेव नो जय हो. जय हो. प्रथम मूर्ति पूज्य भगवती मात जय हो. मात पंच परमागम शास्त्र जय हो. जय हो. सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो. सूर्यकीर्ति भगवान नो जय हो. माताजी नु ज्ञान बोले सूर्यकीर्ति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो. कीर्ति गंधर्व भगवान जय हो जय हो. विराजमान सर्व शाश्वत जिनेन्द्र देवनो जय हो. सोनगढ़ मारे विराज भगवान नो जय हो. जय हो. भगवान श्री कुंकुन आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव नो जय हो जय हो जय हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच राजू भाई. जय जिनेन्द्र. राजू भाई. રાજુ ભાઈ, આ શિબિર દરમિયાન ક્લાસ રહેશે? એટલે જો શિબિરના ટાઈમિંગ આવે ને, એ જો કે આવી ગયા છે, તો જોઈ લઈએ આપણે કે એ ટાઈમે, નહીં તો શિબિરમાં નહીં રહે, કારણ કે ફૂલ ડે પ્રોગ્રામ છે ને. હા, તમને બી સ્ટ્રેન પડશે ભાઈ. તમે હમણાં તો થોડા દિવસ એટલે યાત્રાના 2 દિવસ છે ને ત્યારે રહેશે, પણ શિબિરનો ટાઈમ છે એમાં નહીં રહે 5 દિવસ. હા, કારણ કે આપણે કાલે સવારથી પેલું બીજો સબ્જેક્ટ લેવાના હતા ને, 4-5 દિવસ ક્રમબદ્ધ. તો હવે એનું પછી વચ્ચે ખાડા થશે તો કન્ટિન્યુએશન નહીં રહે રાજુભાઈ. એટલે આપણે ભલે 31 ડિસેમ્બર પછી લઈએ, 31 ડિસેમ્બર પછી લઈએ, જાન્યુઆરી પહેલા વીકમાં લેશું. ને હમણાં કરી લો બેન, આઈ થિંક કરી લો પ્લીઝ. બીજા કેવી રીતે થશે હમણાં? ને કઈ વાંધો નહીં, જે જાન્યુઆરીમાં જ કરો રાજુભાઈ, એટલે બધા હશે. કોણ ટ્રાવેલ કરતું હોય જાન્યુઆરીમાં પાછું પોસ્ટપોન ક્યાં કરવું? પણ પાછા જાન્યુઆરી આંબી જાન્યુઆરી સુધી જશે. જે બી રાજુ કરો. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, હા હા, થેન્ક યુ. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.